اویسن انجیکشن اور انسانی زندگی سے کھلواڑ جنوبی پنجاب بھر میں بھی مریض پڑنے لگے ہیں۔ پنجاب میں انجیکشن کے متاثرین 68 ہو گئے۔ ملتان میں 21 افراد کی بینائی متاثر ہوئی۔ بہاولپور میں 17 افراد کی بینائی متاثر ہوئی۔ حکومت نے اویسن انجیکشن کی فروخت اور استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ ویسٹرن انجیکشن اور انسانی زندگی سے کھلواڑ جنوبی پنجاب بھر میں مریض بڑھنے لگے۔ پنجاب میں انجیکشن کے متاثرین 68 ہو گئے۔ ملتان میں 21 افراد اور بہاولپور میں 17 افراد کی بینائی متاثر۔ روزانہ کی بنیاد پر 1500 مریض رپورٹ ہونے لگے۔ رش کے پیش نظر وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور میں 6 کاؤنٹر قائم کر دیے گئے۔ ویسٹرن انجیکشن قوت بصارت پر اثر انداز ہونے لگا۔ حکومت نے ویسٹرن انجیکشن کی فروخت اور استعمال پر پابندی لگا دی۔ ڈریپ کے مطابق ویسٹرن انجیکشن پر پابندی صحت عامہ کے تحفظ اور ٹیکے کا غلط استعمال روکنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ ویسٹرن انجیکشن کی سیل اور استعمال پر پابندی عارضی طور پر لگائی جا رہی ہے۔ رجسٹرڈ ویسٹرن انجیکشن کی ڈسٹریبیوشن پر پابندی عائد کر دی گئی۔ غیر معیاری انجیکشن سے مختلف مریضوں کی بینائی متاثر۔ نگراں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں انسانی زندگی سے کھلواڑ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے غفلت برتنے پر 11 ڈرگ انسپیکٹرز کو معطل کر دیا۔ ملتان سے ساجد محمود خان کو معطل کیا گیا۔ خانیوال سے رانا محمد اکرم، بھاول نگر سے راؤ ساجد ارشاد معطل، رحیمیہ خان سے امیر شاہد اور فروخ سلیم کو معطل کر دیا گیا۔ بہاولپور سے علی رضا اور امجد فروخ جبکہ صادق آباد سے فروخ سلیم کو معطل کیا گیا۔ ادھر غیر معیاری انجیکشن سکینڈل سامنے آنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب ایکشن میں آ گئے۔ ذمہ داروں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ غفلت کے مرتکب ڈرگ کنٹرولر اور انسپیکٹر سمیت 11 افسران معطل کر دیے۔ محسن نقوی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ملزموں کو بخشا نہیں جائے گا۔ پنجاب حکومت نے غیر معیاری انجیکشن بیچنے والوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ غفلت کے مرتکب ڈرگ کنٹرولر اور انسپیکٹر سمیت 11 افسران معطل کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام متاثرین کا مفت علاج کرانے کا اعلان کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ متاثرین کا علاج بہترین ڈاکٹرز کریں گے۔ انجیکشن کیسے فروخت ہوتا رہا، محکمہ ہیلتھ کیئر کو جواب دینا ہوگا۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس چیز سے سفر کر رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ ان کا علاج فری میں کرا رہی ہے، اور نشتر میں بھی شفٹ ہو گئے ہیں پیشنٹس۔ ہم نے ساؤتھ والے وہاں پہ کر رہے ہیں، پنجاب والے یہاں پہ ہم کر رہے ہیں، اور باقی لوگوں کو بھی رابطہ کیا ہے کہ یہاں پہ آئیں، اور ہم خود ان کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ باقی ہم نے کل آپ لوگوں کو آلریڈی بتا دیا تھا، جو اس کی رپورٹ آنے میں ابھی 10-12 دن لگیں گے، لیکن وہ میڈیسن کو بین کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرچے درج کر لیے گئے ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ انکوائری رپورٹ آنے پر باضابطہ کارروائی ہوگی۔ ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بہاولپور میں آشوب چشم شدت اختیار کر گیا۔ صادق عباسی ہسپتال میں روزانہ 1500 مریض رپورٹ ہونے لگے۔ وکٹوریہ ہسپتال میں بھی کاؤنٹرز کی تعداد 1 سے بڑھا کر 6 کر دی گئی ہے۔ آشوب چشم کی وبا نے بہاولپور میں بھی پنجے گاڑ لیے۔ وکٹوریہ ہسپتال میں مریضوں کا غیر معمولی اضافہ۔ انتظامیہ نے ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ کاؤنٹرز کی تعداد بھی بڑھا کر 6 کر دی۔ صادق عباسی ہسپتال میں روزانہ 1500 مریض رپورٹ ہونے لگے۔ جو ورڈ آف ایڈوائز، ورڈ آف کوشن، پہلی بات تو یہ کہ سکولز کی وجہ، سکول سے بہت پھیل رہا ہے، یعنی بچے سکول جا رہے ہیں، ماں باپ بھی اتنا زیادہ دھیان نہیں دے رہے، ریڈ آئیز ہو رہی ہیں، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، بچے سکول چلے گئے۔ جب چلے گئے تو انہوں نے اپنے ساتھ والے 10-12 بچوں کو انفیکٹ کر دیا۔ وہ 10-12 بچے اپنے گھر گئے، انہوں نے وہی انفیکشن وہاں پہ ٹرانسمٹ کر دیا، جس کی وجہ سے اتنا ریپڈلی، اتنا تیزی سے یہ انفیکشن پورے شہر میں اس وقت پھیلا ہوا ہے۔ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج اور ماہر امراض چشم ڈاکٹر صوفیہ فرخ نے اسکولوں کو انفیکشن ہاٹ سپاٹس قرار دے دیا۔ فوری طور پر SOPs پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ، متاثرہ افراد کو آئسولیٹ کرنے کی ہدایت۔ کہا آشوب چشم کے مریضوں کے استعمال کی اشیاء علیحدہ کر دینی چاہیے۔ پبلک سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ کو آنکھیں ریڈ ہیں، اس میں سے پانی آ رہا ہے، درد ہے، سرخی ہو رہی ہے، تو کائنڈلی آپ بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل یا سول ہاسپٹل کے آنکھوں والے آؤٹ ڈور میں جائیں تاکہ آپ کو وہاں پہ دوائی مل سکے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے بچنا کیسے ہے؟ اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں۔ یہ سرفیس کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے، ٹچ سے پھیلتا ہے۔ پرنسپل کا کہنا تھا کہ شہری ہاتھ ملانا بند کر دیں۔ انفیکشن کی صورت میں فوری طور پر ہسپتال سے رجوع کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ RG پنجاب کے احکامات، فرینڈز آف پولیس کے نظریے پر عمل درآمد کا آغاز۔ نجی کالج کے طلباء و طالبات کو بہاولپور خدمت مرکز تھانہ بغداد الجدید اور پولیس لائنز کا دورہ کروایا گیا۔ بہاولپور پولیس نے فرینڈز آف پولیس کے نظریے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ IG پنجاب چاہتے ہیں کہ عوام کے دلوں سے پولیس کا خوف ختم ہو۔ اس حوالے سے IG پنجاب کے احکامات ہیں کہ معاشرے میں پولیس کی عوام دوستی کو فروغ دیا جائے۔ اس سلسلہ میں طلباء و طالبات کو پولیس سینٹرز کے دورے کروائے گئے۔
देखें, आईजी साहब पंजाब ने एक बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है और उस इनिशिएटिव की रोशनी में कि हम पुलिस जो हमारी कम्युनिटी है पुलिस के साथ, क्योंकि पुलिस का पब्लिक के साथ 24 घंटे वास्ता पड़ता है, लेकिन पब्लिक को हमारे अच्छे कामों का पता नहीं होता कि हम कितना काम कर रहे हैं। 24 घंटे हम काम करते हैं, हमारे लोग शहीद होते हैं, हम घरों से दूर हैं, बच्चों से दूर हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, सारे अच्छे काम पुलिस के रोज़ 100 अच्छे काम होते हैं और एक कोई बैड होता है तो उसकी वजह से हमारा इमेज डाउन हो जाता है। तालबात ने पुलिस सेंटर्स के विजिट में पुलिस के फ्राइज बारे बहुत कुछ जाना और समझा। तालबात का कहना था, पुलिस बारे दिलों में खौफ का तासुरात नहीं और करप्शन की जो खबरें सुनते हैं वो भी गलत लगती हैं। पुलिस बहुत अच्छी है। दौरा के दौरान बच्चियों को हरासा किए जाने के मामले पर मुतारिफ करवाई गई ऐप बारे भी ब्रीफिंग दी गई। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रूही न्यूज, भावलपुर। डेरा गाजी खान में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जारी। बाजारों में झंडियों की बहार, सजावटी सामान की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। डेरा गाजी खान में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मार्केटों में सजावटी अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई। शहरी स्टॉल से मुख्तलिफ अशिया खरीदने में मसरूफ है। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न की जो आमद है हम उसको भरपूर तरीके से मनाएंगे। हम घरों को भी सजा रहे हैं, हम गली मोहल्लों को भी परचम वगैरह लगा रहे हैं। हमने बैज खरीदा है और सामान वगैरह खरीदा है स्टेज सजाने के लिए। रबीउल अव्वल की आमद है, इसलिए क्योंकि अगर हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता, हुजूर है तो सब कुछ है। शहरियों का कहना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न भरपूर अंदाज में मनाएंगे। घरों के साथ मसाजिद और गलियों को भी सजाएंगे। भरपूर तरीके से चरागा किया जाएगा। शहरियों का कहना था कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेलाद हर साल भरपूर अंदाज में मनाते हैं। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रूही न्यूज, डेरा गाजी खान। मियां कौमी यकजहती कौंसिल सूद के नासूर से छुटकारे के लिए मैदान में आ गई। 6 अक्टूबर को यौम खात्मे सूद आगाही के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया है। ये मनाजिर हैं मियो यकजहती कौंसिल सेक्रेटरीट के, जहां चीफ ऑर्गेनाइजर सलीमुर रहमान मियो सूद के खात्मे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनका कहना था कि सूद के लिए तशहीर काबिल मुजम्मत है। 6 अक्टूबर को यौम खात्मे सूद आगाही के तौर पर मनाया जाएगा। 6 अक्टूबर को जो जुम्मतुल मुबारक का दिन है उसे कौमी खात्मा सूद डे के मौका पर मनाया जाएगा और उस दिन मुल्क भर की मसाजिद में, मदारिस में और मुख्तलिफ तालीमी इदारों में माहिरीन और उलमा किराम सूद के खात्मा के लिए सूद के नुकसानात के बारे में तफसीली खिताब करेंगे। मियो यकजहती कौंसिल जनूबी पंजाब के सदर वसीम अकरम, मेंबर थिंक टैंक चौधरी रियाज शाकिर और हाजी मोहम्मद जमील मियो का कहना था कि सूद की वजह से मजबूर लोग अदायगियां करते करते खुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। 6 अक्टूबर को खैबर से कराची तक उलमाए कराम जुमे के खुतबात में सूद के खिलाफ खिताब करेंगे। इस मौके पर आगाही कैंप भी लगाए जाएंगे। हर मुसलमान इसको गलत यानी कि जो है ना तसव्वुर करता है कि ये हमारे नबी ने भी कहा है कि सूद जो है ना वो हराम है। इस हराम की लानत को मजीद ख़त्म करने के लिए हम लोग चौक डबल फाटक पर कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हम अंजुमन ताजरान और सब लोग उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। मियो यकजहती कौंसिल पाकिस्तान के ओहदेदारान का मजीद कहना था कि सूद के नासूर से छुटकारे के लिए अवामी ताउन की जरूरत है। 8 अक्टूबर को लाहौर में खात्मा सूद कॉन्फ्रेंस होगी। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में मौसमी सूरत हाल और फसलों बारे जायजा इजलास। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। यूनिवर्सिटी में मौसमी सूरत हाल और फसलों बारे जायजा इजलास का इनकाद। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। इजलास का मकसद ऐसी सिफारिशात तैयार करना था जिससे पैदावार और ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा हो। कंसल्टेटिव सेशन था बेसिकली, जिसमें हम कॉटन वीट और राइस वीट के हवाले से ऐसी सिफारिशात मुरतब कर रहे हैं जिनके ज़रिए से हम जो ज़मीन और हमारे पानी के रिसोर्सेज हैं जिनको हम वक्त के साथ साथ डिप्लीट करते जा रहे हैं, यानी हम ज़मीन को दे कुछ नहीं रहे वापस, हम पानी जो है वो अनजुडिशियसली यूज़ कर रहे हैं। तो वो हम ऐसे ही सिफारिशात चाह रहे हैं बनाना ज़िम्मेदारों के साथ मिलके, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ मिलके और सबके साथ मिलके कि इसको जो है हम एक
सस्टेनेबल लेवल पे आगे लेके चल सके। डॉक्टर आबिद हुसैन का कहना था कि आज कपास, गंदम और चावल के बारे में ऐसी हिकमत अमली पेश की है जिससे मौसमी सूरत हाल के असरात से भी निपटा जा सकेगा। पानी के इस्तेमाल से लेकर जमीन की सेहत बारे तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर सिफारिशात पेश की हैं। क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो भी मुतासर ना हो, तो ये इस सिलसिले में ये हमारा दूसरा सेशन था। इससे पहले हमने एक सेशन 2 हफ्ते पहले काला शकाकुर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर किया था। तो इसकी रिकमेंडेशन जो है वो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर फाइनल करके हम पॉलिसी मेकर्स जो हैं, आला ओहदेदारान को हम पेश करेंगे ताकि इसको आगे इम्प्लीमेंट किया। इजलास में यूनिवर्सिटी असातिज़ा समेत ज़रई इंडस्ट्री के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। कैमरामैन हारून रमजान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। उधर रहीम यार खान में सेव फूड सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से माहना कॉन्फ्रेंस और आगाही वाक 21 दिसंबर तक जिले के 1127 फूड बिजनेस की चेकिंग की जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी हफ्साने उसूलों के ऐन मुताबिक हर शहरी तक खुराक मुहैया करने के लिए कोशां है। रहीम यार खान में सेफ फूड सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से आगाही वाक और इजलास का इनकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी मोहम्मद जहांसेब ने डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी को प्रोजेक्ट के हवाले से बताया। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी आरटी रियासत अली, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड अथॉरिटी मकसूद उल हसन, अफसरान व फूड हैंडलर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। पहले मरले में सेफ फूड सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिले के 1127 फूड बिजनेसेस की चेकिंग की जाएगी। पहला मरला 10 सितंबर से 31 सितंबर तक रहेगा। सेफ फूड सिटी प्रोजेक्ट के तहत फूड बिजनेसेस के 100% लाइसेंस स्टाफ की स्क्रीनिंग व ट्रेनिंग होगी। मसनूआत की रजिस्ट्रेशन व लेबल की मंजूरी व जाली मसनूआत के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मुनज़्ज़म तरीके से जराइम की रोकथाम, अस्पतालों और तालीमी इदारों में फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। शहर में जितनी भी पानी सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं या फूड आइटम्स जो पैक करके बेचती हैं या बेकरीज हैं, इन सब का हम फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट करेंगे और जो फूड अथॉरिटी की टीम्स हैं वो इन लोगों ने अपनी तमाम तर जो मनसूबा बंदी है उसको फाइनलाइज कर लिया है और गवर्नमेंट की सपोर्ट इनके साथ है। जितने भी फार्म टू फोक का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे जो डायरेक्टर जनरल है रजा जहांगीर साहब, उनके विजन के मुताबिक आसफ अली डोगर साहब हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन हैं, उनकी सरबराही में हम इंशाल्लाह तमाम के विज़िट कंप्लीट करेंगे और ये हमारा कह लें जो मिलावट माफिया है उनको हम खबरदार कर रहे हैं और जो अवामुन्नास है उनको हम एजुकेट कर रहे हैं, उनको हम अवेयर कर रहे हैं। सीवरेज के पानी से सब्जियां उगाने और खुर्दनी तेल के दोबारा इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। शेख सैयद अस्पताल में फार्मासिस्ट डे पर वॉक का इनेकाद किया गया। तिबी सहूलियात की फराहमी में फार्मासिस्ट की अहमियत और किरदार को उजागर किया गया। जदीद तिब फार्मासिस्ट के बगैर नामुकम्मल है। फार्मासिस्ट की अहमियत और उनकी खिदमात को उजागर करने के लिए आलमी सतह पर दिन मनाया जाता है। शेख ज़ैद अस्पताल में फार्मासिस्ट की खिदमात को सराहने के लिए प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी की क़यादत में रैली निकाली गई। MS डॉक्टर आगा तौहीद और फार्मासिस्ट ने शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी का कहना था कि फार्मासिस्ट शोबा तिब में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। फार्मासिस्ट जो है ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर हैं किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए, जिनका एक डेफिनेट रोल है जो मेडिकेशंस हैं उनकी अवेलेबिलिटी कराना, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, दवाइयों की क्या लाइफ होनी चाहिए, कैसे उसकी प्रेपरेशन करनी है, कैसे उसकी डिस्पेंसेशन करनी है, ये सारा काम फार्मासिस्ट का है। जो फार्मासिस्ट महकमे हेल्थ में काम कर रहे हैं, ये इनको अपनी अहमियत का एहसास हो कि हम भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर हैं मेडिकल शोबे में और हम इसके लिए इसकी बेहतरी के लिए दिन रात इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और इसको बेहतर से बेहतर करेंगे। फार्मासिस्ट का कहना था कि 50 बेड्स पर एक फार्मासिस्ट होना जरूरी है। अच्छे इलाज के लिए सेहत के उसूलों पर अमल दरामद किया जाए। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में इस वक्त अराउंड 25 फार्मासिस्ट सर्विस डिलीवरी में वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं और हमारी महकमे सेहत से गुजारिश है कि तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज को बेहतर बनाया जाए। फार्मासिस्ट के आलमी दिन पर शेख ज़ैद अस्पताल में केक काट कर फार्मासिस्ट की खिदमात को सराहा गया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान।
सादिकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी माची गोट का एहसन इक़दाम। कंपनी ने माहौल दोस्त मुहिम के दूसरे फेज का भी आगाज कर दिया है। माहौल को साफ और सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए स्कूल में पौधे लगाए जा रहे हैं। सादिकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी माची गोट माहौल को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। एफएफसी ने माहौल दोस्त मुहिम के दूसरे फेज का आगाज कर दिया, जिसके तहत गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स ओल्ड स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज स्कूल सेटेलाइट टाउन में पौधे लगाए गए। ओल्ड स्कूल पहुंचने पर रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर तलत महमूद जंजुआ का शानदार इस्तकबाल किया गया। तालिबात ने तालियों की गूंज में फूलों की पत्तियां निछावर करके अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। हमने स्कूलों में जो बच्चों के गर्ल्स स्कूल हैं, बॉयज स्कूल हैं, उनमें भी शुरू कर दी है स्कीम या इसको मुहिम को हमने स्टार्ट इसलिए किया ताकि बच्चों के अंदर ये बेदारी पैदा की जाए कि दरख्तों की क्या अहमियत है, माहौलियात में इनका क्या असर है। और इसमें ये भी हमने इनको बताना चाहते हैं बच्चों को कि जब ये दरख्त लगेंगे तो उसके साए में जब वो लोग बच्चे बैठा करेंगे, डेफिनेटली स्कूल के अंदर एक अपना ग्रीनरी इफेक्ट होगा, उसका ओवरऑल इसका एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के लिए दरख्त लगाना बहुत जरूरी है। स्कूल की असातिज़ा और तालिबात भी दरख्त लगाने के लिए पुरजोश नजर आए। अपने बच्चों के अंदर ये शऊर पैदा करना है कि माहौल की अहमियत क्या है। हमारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं उसके साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है, तो एक दरख्त लगाना जो है वो बहुत बड़ी इबादत से बेहतर है, सदका जारी है। पाकिस्तान को ग्रीन होना चाहिए और इस बात को ही फोकस रखते हुए हम लोगों ने आज शजरकारी का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया है। हमारे स्कूल में बहुत से अच्छे अच्छे पौधे हैं और हम मज़ीद इसको और ज़्यादा ग्रीन बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गया है। मैं और अपने दोस्तों के साथ ये ओहद करती हूँ कि हम अपने स्कूल को इसी तरह सरसब्ज रखेंगे और हमारा मुल्क इसी तरह पौधों के साथ ग्रीन और हंसता मुस्कुराता रहेगा। स्कूलों में ग्रीन बेल्ट के नज़ारे आंखों को भले लगते हैं, माहौल को तरोताज़ा बनाते हैं और ये सब फौजी फर्टिलाइजर कंपनी माची गोट की माहौल दोस्त मुहिम के बाइस मुमकिन हुआ। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद, अनवर रोही, सादिकाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवा कितना है।